Hello children, myself Shelly, and today I will discuss with you the stream that you may select after 10th. As the people all know that we are passing through a very crucial time, that is coronavirus. We have to sit at our home. We cannot go outside because of this coronavirus. This is a very crucial disease. We cannot discuss with anyone the stream that we may select. Sometimes there are so many questions arising in our mind. Sometimes we just think that our friend is going to opt commerce, we will also opt commerce. My friend is going for arts, I will also go for arts. Or sometimes there is a peer pressure, sometimes there is a parents pressure on us. So my just advice to you people is, do not go with your friends, do not have peer pressure on you. One more thing, that you may take advice of your parents and then think about your capabilities, the capacities you have in your mind. So today I am here to answer all the questions which are in your mind, and we will just discuss all the 4 streams one by one. So you all know that there are 4 streams. This question is very much clear to our mind. We have 4 streams: medical, non-medical, commerce and arts. We are very much clear in our mind that we have to select one of the stream out of these 4 streams. So first I will go for medical. I will discuss about the medical. What is medical? The person, the student who want to go for doctor line, who want to become doctor or nurse, they will go for medical. It's very much clear in our mind. Second option is non-medical. That is a very good option, because there are so many opportunities after doing non-medical. We can become engineer, architecture, or so many options. But the person or the student who have interest in sciences, who can do biology, chemistry, physics, maths, everything, they can go for non-medical. What is the difference between medical and non-medical? We have three subjects in it. In medical, we have bio, chemistry and physics, but in non-medical, in place of bio, we have maths. So there is maths in non-medical. Third stream is commerce. The focus on my video is on this stream, commerce. Clear? अब कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे. तो कॉमर्स की वैल्यू, वी ऑल पीपल नो दैट इन दिस टाइम, इन दिस एरा, द वैल्यू ऑफ द कॉमर्स इज राइजिंग day by day. The people are opting commerce in place of, some people are just opting commerce in place of medical or non-medical. तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कॉमर्स लेना, कॉमर्स तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन कॉमर्स के साथ अगर हम मैथ्स लेंगे तो इसकी क्या जरूरत है, हम कॉमर्स के साथ मैथ्स क्यों लें. तो मैथ्स और कॉमर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स के साथ मैथ्स लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना बहुत ज़रूरी है, या कॉमर्स के साथ अगर हम मैथ्स नहीं लेंगे तो क्या हमारे कैरियर ऑप्शन कुछ कम हो जाएंगे. सो आई विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. अब देखिए, जहाँ पर कॉमर्स की बात होती है वहाँ पर ट्रेड और बिजनेस, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ पर ट्रेड और बिजनेस होंगे वहाँ पर फाइनेंस, मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं तो मैथ्स जो है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल ऑप्शन है. सेकेंडली देखिए, जहाँ पर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी की हम जहाँ पर भी बात करें वहाँ पर बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है. एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, और भारत में तो देखिए आजकल बिजनेस की वैल्यू, वैसे ही इंडिया में जो वैल्यू है बिजनेस की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर कॉमर्स जो है एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है. लेकिन कॉमर्स के साथ अगर आप मैथ्स लेंगे तो आपके जो कैरियर ऑप्शन में स्कोप्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होंगे और स्कोप बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ते जाएंगे. हाँ, लेकिन कॉमर्स के साथ आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम मैथ्स नहीं लेंगे कॉमर्स के साथ तो क्या हमारे कैरियर ऑप्शन कम हो सकते हैं. तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. लेकिन यस, अगर आप कॉमर्स के साथ मैथ्स लेते हैं तो आपके जो कैरियर ऑप्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अब देखिए, हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, वी जस्ट गो फॉर समटाइम यूपीएससी, एसएससी, वी गो फॉर बैंकिंग सेक्टर, रेलवेज, इन सब में जाने के लिए वी हैव एंट्रेंस एग्जाम इन विच यू जस्ट नीड मैथ्स. अगर आपके पास मैथ्स है, आपने मैथ्स किया हुआ है, तभी आप ये सारे कंपटीशन एग्जाम जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं.
तो अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि कॉमर्स अगर आप करते हैं मैथ्स के साथ, तो उन बच्चों के लिए कई कॉलेजेस में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो कोर्सेज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने कॉमर्स में मैथ्स की हुई है, ठीक है, जैसे कि BCom ऑनर्स। अब ये तो हमारे माइंड में बिल्कुल साफ पिक्चर क्लियर है कि कॉमर्स अगर हम लेंगे तो वी हैव सो मैनी कैरियर ऑप्शन, वी हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज, वी कैन बिकम CA, we can just go for accountancy, financial sector, you can go for any sector where you need maths. तो मैथ्स अगर आप लेते हैं तो आप CA बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। CA दैट इज चार्टर अकाउंटेंट, ICWIA, इन सभी कोर्सेज के लिए मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स के साथ मैथ्स लेते हैं तो आपके फ्यूचर में जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कॉमर्स तो वैसे ही इतना टफ सब्जेक्ट है, इसमें इकोनॉमिक्स जैसे बिजनेस जैसे बहुत टफ सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हाउ वी विल डू मैथ्स, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आप मैथ्स नहीं कर सकते, आपने 10th में भी मैथ की है, तो मैथ्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन इट। आपको अगर अपने कैरियर ऑप्शन में बढ़ोतरी करनी है, आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिले, आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम क्लियर करो, आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ, आप रेलवेज में जाओ, तो मैथ्स का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अगर आप मैथ्स रखते हो तो इसका कोई मतलब लॉस तो आपको है नहीं, होना सिर्फ बेनिफिट ही है, तो वाई नॉट वी शुड ऑप्ट फॉर मैथ्स। अब देखिए जहाँ पर भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे, जहां पर इकोनॉमी आती है वहां पर बिजनेस का होना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, और जहां पर बिजनेस है वहां पर मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। तो इफ यू वांट टू गो फॉर एनी बिजनेस लाइन देन आल्सो देयर इज अ मैथ्स व्हिच इज कंपल्सरी ऑप्शन फॉर यू। तो मेरी वीडियो का जो मेन फोकस है वो इसी पर है कि आप कॉमर्स लें, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो उसके साथ मैथ्स लेना इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर, whether it is directly or it is indirectly। अब देखिए कॉमर्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, कॉमर्स हमने ले ली, हमने मैथ्स भी रख लिया, तो मैथ्स पे हमने नेक्स्ट कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए हमने कोई भी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। तो वो एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर होंगे? ओनली एंड ओनली विद मैथ्स। So I suggest you all to go and opt maths as an optional subject, while if you are opting commerce as a stream. Next fourth one is the arts option. अगर आप आर्ट्स भी लेते हैं तो then also you just go for maths, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाला है। तो dear students, it is very much clear to everyone that maths is a subject which is going to help you a lot in your future career. I hope this my video will help you to opt a good option for you, whether medical, non-medical, commerce or arts. You will select a good option for you. Thank you so much. If you have any query, you can text me. Thank you. Bye. If you like my video, please subscribe my channel, and if you have any kind of query, you can comment in the comment section. Thank you so much again.